you everyone for joining today. And in Umnaima, we have come a long way, and it's been, I think, 12th day, and we have seen some amazing performances and met some very interesting artists and their presentation who brought in different uh, art and different perspective and different way of showing the same thing sometimes. Like a lot of people talk about their body, a lot of people talk about the gender, but in very different ways. So another thing I would like to say about this program, you all know by now that this is a program which is organized by Young Hearts and Hexidexy Box, and it's an effort to join hands with all the creative person, artists, writers, thinkers from around the world to come together to have a creative journey and to share each other's process. And we have been blissful to have this opportunity to meet so many different art practitioners. And as I have mentioned that these few days we have seen some amazing works and presentations by different artists and in very different way. Yesterday also someone artist, very young artist, taking a very different concern. And today also we have our guest artist is Murari Jha, whose works are very unique. He also talks about body or solid socio-political things, but in a very, very unique way. His abstract and figuration both will amaze you and also confuse you equally. So I'm just giving a brief of the artist before we see his presentation and hear from his thoughts and concepts, and then we can have a dialogue with him. So Murari Jha is a Delhi-based visual and performance artist. He holds a MFA from B.R. Ambedkar University, Agra in 2014, and he did his BFA from Patna University in 2010. His multimedia practice explores the personal narrative, the psychological processing of everyday socio-political occurrence, the transformation of the body by the environment, the temporal regimes it occupies, and the performativity of objects and spectatorship, which is something very interesting, I feel. And I'm just mentioning he has participated in many exhibitions, workshops, and residencies nationally and internationally. I'm just mentioning a few key presentations that includes Far From My Home, Machan, conceived for the 5 million incidents at the Gaute Institute, Max Muller Bhavan, New Delhi, which is very recently, just before this lockdown happened, and which is a very important project. And today also he will bring some references from that project. A solo presentation, Fondle, at the Mumbai Art Room in 2018, a performative title, Ched, at Kiranadar Museum of Art, New Delhi in 2017, Good Sleep at Cittadelle Arte, Fondazione Pistoletto, Biella, Italy in 2017, The Lane at Tirtha International Artist Collective, Colombo in 2017, and Body Structure and Space at 1 Shanti Road, Bangalore in 2015, which is very early. And since then, he has been doing and participating in some very important residencies and performances that I have mentioned. So now, before discussing his works or talking about his work, I don't want to take much time. I'm just hand over him so that he can show some of his thoughts. And it's not a performance by Murari. It's not a slide presentation. It's something his thought he wants to share, which he wants to share his thought process, he wants to share his um, practice where we can have in dialogue. And I'll request others also, they can also come in the later part of the whole session to point out their views. So Murari, you can on and start your thoughts, your storytelling, your presentation, whatever you want to call that. Well, thank you so much, all of you, for giving me this space to present myself. So, first, thank you so much, and
I really want to speak in English, but I feel I can express myself better in Hindi. So please allow me to speak in Hindi because uh, this is the way I can express myself better. So I would like to go with Hindi. So is it okay for all? Yeah, that is okay, Murari. I think it's fine. In Okay. between, if needed, if someone don't understand, we can discuss that in English. I can later on let them know. But here, Perfect. initially, you can tell us in Hindi, in your Perfect. best language, wherever you can express yourself best. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. तो मचान, ऑफ कोर्स मचान आपके सामने टाइटल दिख रहा है, बट इस प्रोजेक्ट में मेरा जो अप्रोच है, इस आई I मीन जो आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन और अभी जस्ट हम शेयर कर रहे थे कि प्रेजेंटेशन और एक जो स्टेज का सेंस है वो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड और बहुत ही लाइक एक एक हमेशा एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। लेकिन ये क्यूरियोसिटी कि मैं बात करूं और इस चीज की डिजायर हमेशा मेरे को खुद से इतना बात करना सिखा दिया कि मैं बात करने में कंफर्टेबल हो गया और मैं आज बात करना ज्यादा पसंद करता हूं। इसलिए मैं इसको प्रेजेंटेशन ना बोल के टॉक बोल रहा हूँ, एक कॉन्वर्सेशन जैसा बोल रहा हूँ कि हम एक जस्ट अपनी आइडिया को, इसमें मेरा पर्पस अपने वर्क को भी प्रेजेंट करना नहीं है, जस्ट इसमें मेरा आइडिया, मेरा 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 थॉट प्रोसेस क्या है, और कहीं ना कहीं लास्ट में जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी हम एक प्रेजेंटेशन में, तो हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया की क्लैरिटी और उनको लेकर के बात करना चाह रहे हैं। तो इसलिए इसमें हम काम सिर्फ दो अलग अलग टाइम से चूज किए हैं। एक फर्स्ट जब हम पेंटिंग ज्वाइन किए थे आर्ट कॉलेज में, और जहाँ पे हम तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा उसको स्लाइड दिख रहा था। अच्छा। तो मैं फर्स्ट उस टाइम का पेंटिंग दिखा रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल हम पेंटिंग स्टार्ट कर रहे थे, और उस टाइम में ये हमारे कॉलेज टाइम में जहाँ पे हम लोग ऑयल और कैनवस टच कर रहे होते, तो ये पेंटिंग एक मेरे स्कूल के आसपास, क्योंकि पटना आर्ट कॉलेज का जो कल्चर है और खास करके इस तरह के जो भी कॉलेजेस है वहाँ पे मोस्टली हम साइट पे ज्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सीनियर जूनियर का रिलेशन रहता है जहाँ पे आप एक कॉन्वर्सेशन से और इस तरह से आप सीखते हो। तो ये एक ऐसा साइट था जहाँ पे हम बार बार बैठते थे और अलग अलग मीडियम और अलग अलग तरह से काम करने की कोशिश करते हैं। और खास करके ये इमेज अभी मेरे को मेरे सारे कॉन्वर्सेशन और आइडिया को कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इसमें देख पाता हूँ, जहाँ पे घर का सेंस क्या हो मेरे लिए बदल रहा है, किस तरह से बॉडी का मीनिंग मेरे लिए आ रहा है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए इमेज इसलिए बन जाता है कि जहाँ पे एक तरह से हम इस दोनों को मर्ज होते हुए देख रहे हैं, जहाँ पे बॉडी और लैंडस्केप साथ में मर्ज हो रहा है। तो ये मेरा एक बहुत ही इनिशियल पेंटिंग्स था जिसमें से मैं दिखा रहा हूँ। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये उसी टाइम फेज का एक वर्क है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक फार्मर स्काई को देख रहा है। स्काई को देखने का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि एक फार्मर किस तरह से एक होप का सेंस जो दिख रहा है, जहाँ पे उनकी पूरी लाइफ, उनका जो जो सारा लेवर है वो उस पर डिपेंडेड रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि टाइम का जो एक्सेप्टेंस है, एट द सेम टाइम जो होप आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं ये पेंटिंग है। और मैंने तीसरा इमेज जो लिया है ये उसी टाइम का, इवन उससे भी पहले मैंने जब एक्रेलिक स्टार्ट किया, मतलब एकदम स्टार्ट बिगिनिंग का ही ये सारा काम है। और इस पेंटिंग में जैसे ही हम इस पेंटिंग को आज के टाइम में देखते हैं तो मेरे को याद आता है कठपुतली कॉलोनी का वो स्पेस जहाँ पे सारे घर टूट जाते हैं। आप अगर पटना गए होंगे तो आप हम उस टाइम में स्टेशन से कॉलेज जाने का एक स्पेस था जहाँ पे कई सारे झोपड़ियां हुआ करती थी, लाइक कि स्टेशन के जस्ट सामने। और उस टाइम में पूरे उस झोपड़ी को तोड़ दिया गया था, और हम लोग जनरली जैसे बता रहे थे कि साइट पे जाके वर्क करना होता था, तो हम उस साइट पे जाते हैं और एक दिन ऐसा लगता है कि कोई ऐसा वॉर हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जहाँ से पूरे कुछ लोग कहीं अलग अलग कॉर्नर में बैठ के कुछ खाने का कुछ शेल्टर जैसा क्रिएट करके उस तरह से कर रहे थे। तो मेरे लिए एक बहुत इस तरह का इमेज था जिसको मैंने पेंट किया। और खास करके इस इमेज को दिखाने का मेरा पर्पस ये था कि किस तरह के सब्जेक्ट्स मेरे काम में आ रहे थे और
किस तरह के सब्जेक्ट्स कंटिन्यू मेरी पेंटिंग्स में आ रहे थे, ये एक मेरा इम्पोर्टेंट आयाम बन रहा है। और जब हम सेम दिल्ली में आते हैं तो किस तरह से वो इमेज फिर बदल रहा है। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे हम दिल्ली आते हैं और दिल्ली में ये इमेज किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये मेरा एक बेस्ट एक्सप्लोरेशन का टाइम भी देखते हैं जहाँ पे हम बहुत ही काम कर रहे थे। और एटलीस्ट मेरे लिए वो ऐसा एक टाइम था जो मेरे को खुद को इमेज का मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल था। इस टाइम का काम हालांकि हम कभी प्रेजेंट नहीं किए, क्योंकि मेरे को इस टाइम के काम हर एक इम्पॉर्टेंट लगता है जो कहीं ना कहीं मेरे साइकोलॉजी से कनेक्ट करता है। तो इसलिए मैं इस टाइम का एक वर्क रखा हूँ। और खास करके इस दौरान में मेरे को एक रियलाइजेशन ये हुआ जहाँ पे इमेज इस तरह से बदल रहे थे। तो मेरे को इस फेज में कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को पेंट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं जिसे पेंट कर रहा हूँ, मैं जिस इमेज को पेंट कर रहा हूँ वो किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किस किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और किस स्पीड में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये रिसेंटली हम सब ने इनकाउंटर किया जहाँ पे हजारों लेबर जो है अपने घर की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। अभी रिसेंटली हमने लॉकडाउन के स्टार्टिंग में हमने देखा तो किस तरह से जिस इमेज को हम पेंट कर रहे थे वो किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उसकी स्पीड इतनी हाई है कि आप उसकी स्पीड को तभी ट्रेस कर पाएंगे, या आप उसको तभी ट्रेस कर सकते हैं जब मेरे को एक लाइन याद आ रहा है अभी कि इवन कांट का फिलॉसफी में मेरे को समझ में आ रहा है जहां तक कि आप एक सर्टेन बैगेज से ही उसको ट्रेस कर पाते हैं, एक सर्टेन साइकोलॉजी से ही आप उसको ट्रेस कर पाते हैं, क्योंकि आप इस इमेज में नहीं है, आप इसमें नहीं है। जो इमेज आप क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड का जो एक कंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू आप उसको ट्रेस कर पा रहे हैं। और इसकी स्पीड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन का जो स्पीड है और इसमें जो ब्लरनेस है, आप का दिमाग इसको एक कंप्लीट ट्रेन की तरह इसलिए देख पा रहा है क्योंकि इसकी इमेज है। तो मेरे को एक बचपन का याद आ रहा है कि जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे रिलेटिव मोशन के बारे में। आप रिलेटिव मोशन का तो मैं पता नहीं, यहाँ पे कोई अगर साइंस के अच्छे एक्सपर्ट होंगे, मेरे को वो नॉलेज नहीं है, बट मेरे को जो ऑब्वियसली एज एन आर्टिस्ट मेरे को जो स्टोरीज याद हैं कि जहाँ पे आप देखते होंगे कि हम लोग ये पढ़ते थे कि जब आप ट्रेन के स्पीड को देख रहे हैं बाहर से, तो ट्रेन आपको स्पीड में दिखता है, और ट्रेन से बाहर का जो भी चीजें हैं वो बहुत ही स्पीड में दिखता है। लेकिन आप अगर ट्रेन में हैं तो आप एक दूसरे को देख रहे हैं, आप एक दूसरे को देख रहे हैं मीन्स एक कंडीशन है, एक कंडीशन देखने का जो है वो कहीं ना कहीं मेरे थॉट का एक 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 प्रोवोकेशन बानू, या पता नहीं मैं इसको क्या बोलूं, मैं और आगे क्लियर कर रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल दे करके, जो कहीं ना कहीं मैं जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट को मैं पढ़ता हूँ और मेरे को एग्जाम्पल याद आ रहा है कि यू कैन नेवर डाइव इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। मीन्स रिवर का जो फ्लो है आप दोबारा उसमें डाइव नहीं कर सकते, बिकॉज कि वो वाटर कहीं ना कहीं वहां पे मौजूद नहीं है। इट मीन्स आप अगेन अगर उसमें हो तो आप उस वाटर को टच नहीं करो, लेकिन सेंस ऑफ वाटर जो है दैट इज देयर। तो तो इसी में एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आप सब जानते होंगे, डेरिडा, जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है समझना, बट मैं जब भी ट्राई करता हूँ और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता हूँ तो उसमें से मेरे को एक जो डिफरेंस का फिलॉसफी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग, उन्होंने जो थियोरी दिया है डिफरेंस का, जहाँ पे डेफर और डिफर, अगर इसको डिकोड करें तो अब डेफर और डिफर आ रहा है, जो नॉट alike means which is changing, or to continue. Defer means to continue, means there is something which is continuously changing। अगर इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें अपने तरह से तो आप देखेंगे कि ये जो सर्कल्स है, पता नहीं अभी आपके पीपीटी कैसे, मेरा तो कटा हुआ दिख रहा है, क्या प्रॉपर इमेज आ रहा है पीपीटी का? बट एनीवेज यस। तो ये जो इमेज है आप इसमें देखेंगे कि सर्कल अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से
है, मीन्स जो सेंस ऑफ चेंजिंग है, मीन्स आप अलग-अलग जगह पे चेंज हो रहा है। हालाँकि ये एग्ज़ाम्पल मैं बहुत अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने खुद से फ़ोटोशॉप पे ट्राई करने का कोशिश किया। तो आप देखेंगे कि सर्कल चेंज हो रहा है, लेकिन जो सेंस ऑफ सर्कल है वो हम उसको कंसीडर कर, हम उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। हम अ, यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्कल। द इमेज ऑफ सर्कल इज़ देयर। छोटा है, बड़ा है, कॉर्नर में है, बट द इमेज ऑफ सर्कल इज देयर। सो ये एक मैं इस पॉइंट को मैं इसलिए एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ तक मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया। जो एक जो सेंस है, जो जो एक इन बिटवीन का जो सेंस है, जहाँ पे आप डीकंस्ट्रक्शन, सॉरी मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, कंस्ट्रक्शनलिज्म के थियोरी में जब आप देखते हैं कि बिंग का जो फिलॉसफी है, बी प्लस आई एन जी, बी मीन्स होना, मीन्स डन, समथिंग डन, और ing मीन्स कंटिन्यू, समथिंग इज देयर व्हिच इज कंटिन्यू, मीन्स जो एक एग्जिस्टेंस भी है, मीन्स और कंटिन्यू है, मीन्स कुछ ऐसी चीजें जो कंटिन्यू है, पता नहीं, लेकिन उसमें एक ऐसी फैकल्टी है, उसमें एक ऐसी पॉइंट है जो कंटिन्यू सब में ट्रांसफॉर्म नहीं बोले बल्कि सब में जा रहा है। और शायद इसको और क्लियर करने के लिए मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ कि आप लाइक लाइक अगर इसको हम आप देखेंगे जिसको कि हम आज के टाइम में इमोशन कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एक यूनिवर्सल फॉर्म है। और जब मैं पेन और ट्रॉमा और एंजाइटी और इस तरह की वर्ड्स यूज करता हूँ, और मेरा पूरा जो कॉन्वर्सेशन अभी जो भी है वो इस वर्ड को अवॉइड करना था, बिकॉज इसकी एक अपनी जो यूनिफॉर्मलिटी, आई मीन यूनिवर्सलिटी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। लेकिन मैं इस वर्ड को इसलिए अवॉइड कर रहा था कि आप जब अगेन स्ट्रक्चरलिस्ट फिलोसफी को पढ़ेंगे तो आई मीन मैं जितना समझ पाया हूँ कि जहाँ पे सिग्निफाइड और सिग्निफाइड का एक थ्योरी आता है, जहाँ पे आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो इमेज क्या प्रोड्यूस कर रहा है। लाइक मैं अगर पेन बोल रहा हूँ तो वो आपके दिमाग में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, और क्या मैं उसको मैं जान रहा हूँ, ये मेरे लिए एक सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि मेरे लिए पेन का मतलब आज भी क्लियर नहीं है। अगर आपको पेन का थोड़ा सा एक फनी इंसिडेंट बताएं तो पेन में आज बहुत मुश्किल से मैं कुछ टाइम से क्लियर कर पाऊँ कि कौन सा कलम वाला पेन है और कौन सा पेन है। तो तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन है वो उसकी वोकेबलरी कुछ और है। तो ये जो आप स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जो द्वंद है वो कहीं ना कहीं मेरे को अपने काम में दिखता है कि मैं किस तरह से वर्ड और इमेज के बारे में सोचूं। क्योंकि तो ये जो कंडीशन एक सोचूं, आई मीन, तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन क्रिएट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसीलिए मेरे लिए मैं जिस कॉन्वर्सेशन को बात करने की बार बार कोशिश करता हूँ हमेशा एक एब्स्ट्रैक्शन में चला जाता है। और इसीलिए शायद मेरा ये पॉइंट था कि मैं कैसे इसको बात करूं। और ये इटसेल्फ मेरे लिए एक परफॉर्मेटिव एक्सरसाइज था और प्रोवोकेशन मेरे लिए था कि मैं इसको कैसे देख रहा हूँ। और खास करके मैं जिस स्टेज के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें एक नया आयाम जो जुड़ता है, जहाँ पे आप ट्रेन की स्पीड आपने देखा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक ऐसी कंडीशन जहाँ आप एक दूसरे को देख रहे हैं, मीन्स दैट इज नॉट नॉर्मल। क्योंकि इसलिए नॉर्मल नहीं है क्योंकि आप एक सर्टेन स्पीड पे हो, आप वाटर देख रहे हो या फिर आप बिंग का फिलोसफी है जो कांस्टेंट बदल रहा है, लेकिन देयर इज समथिंग देयर। तो कहीं ना कहीं जो दूसरा वो मेरे लिए एक बहुत ही दूसरा आयाम जो जोड़ता है वो है रेसिस्टेंस का। तो तो जो तो मैं जो 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 रेसिस्टेंस जो मेरे को समझ में आता है, जहाँ पे मैं जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो रहा है उस टाइम और उस टाइम से पहले मैं शायद अपनी कुछ रिसर्च और कुछ स्टडी को लेकर के काम कर रहा था। तो मैं फैज को काफी पढ़ रहा था और फैज का सारे पोइट्री के मीनिंग और उनको समझने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे एक सेंस है कि हम देखेंगे, जो कि आप शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में देखे होंगे कि ये किस तरह से एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट और बहुत
लार्ज लेवल पे इसको गाया गया था। तो मेरे लिए उस टाइम में मैं जब इसको स्टडी कर रहा था तो हम देखेंगे हम देखेंगे का जो सेंस है, और खास करके ये जब आप देखेंगे 1985 में जब पाकिस्तान में इकबाल बानो जो फेमस गजल सिंगर थी, वो इसको गाई थी, जो कि फैज का फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी था। और उस टाइम में वो 50,000 लोग वहां पे किस तरह से उसको परफॉर्म किए। और मेरा पॉइंट यहाँ पे जो मैं बार बार अपने कामों में कहने की कोशिश करता हूँ, एक्सेप्टेंस और सेलिब्रेशन। तो ये हम देखेंगे का जो सेलिब्रेशन था वो किस तरह से एक प्रोटेस्ट और स्ट्रीम ऑफ रेसिस्टेंस, आई डोंट नो अबाउट द वर्ड, बट आप समझने की कोशिश करें किस तरह से ये एक फॉर्म क्रिएट होता है। और इसके साथ मेरा एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है जो हम देखेंगे, वी शैल विटनेस। मेरी मम्मी हमेशा मेरे को बताती है कि तुमको पिटाई करना बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज तुमको कभी हम पीट नहीं पाए। बिकॉज रीजन ये था कि मम्मी कभी मेरे को इसलिए नहीं पीटती थी कि अगर वो कभी बोल देती थी कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा पनिशमेंट हो जाता था, और मम्मी को फिर उसको ही डील करना बहुत मुश्किल हो जाता था। आप सेम एग्जांपल, मैं अगर एक दूसरा एग्जांपल दूं कि आप आज के टाइम में अगर किसी को स्लैप करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, चाहे गाली देना हो या ऐसे बहुत सारे गांव में देखे हैं जहाँ पे बच्चे बहुत दूर में जाके रिस्पॉन्ड करते हैं कि अगर एक थप्पड़ मार दिया तो वहां पे चुप रहेगा, आगे जाके वो गाली मार के जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन, इस तरह के टाइम में जब हम हैं, उस टाइम में अगर कोई साइलेंट जाता है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे ये फिर रिटर्न होगा। और जो पूरा पोइट्री है, जहाँ पे मैं कांट के फिलॉसफी से बहुत रिलेट कर रहा हूँ, जहाँ पे और शायद मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा जो कॉन्वर्सेशन है, और पोइट्री, खैर पोइट्री का हम पूरा लाइन नहीं ला पाए हैं, लेकिन जहाँ पे बात है कि विसल विटनेस हम देखेंगे, तो वो जो है कि एक्सेप्टेंस ऑफ टाइम जो है वहाँ पे कि हम ठीक है, ओके दिस इज द fine, this is fine situation or time, but we shall witness, हम देखेंगे मीन्स। और इसके जो आगे के पूरे लाइंस है वो एक के बाद इस तरह से वो स्ट्रक्चर्ड है, एक तरह से ऐसे बयां करते हैं कि जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो हमारे पास होगा, उसमें हम और आप दोनों ही होंगे। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है वो अद्भुत है मेरे लिए। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूसरा इमेज ये दिखाऊंगा जो मेरे लिए इसको एक्सप्लेन करने से ज्यादा हमको लग रहा है कि ये इमेज अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। ये एक सिख गर्ल है, हरनाम करके, मैं प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा बेवकूफ हूँ, हरनाम, HARNAAM, हरनाम कौर, जो अपनी बियर्ड, जो एक मॉडल है, और अपनी बियर्ड को इंजॉय करती हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सेल्फ, जो मैं कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा था वो कहीं ना कहीं मैं उसको टच नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इमेज इटसेल्फ बहुत सारी बातें कर रहा है, जहाँ पे सेल्फ इटसेल्फ किस तरह से स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है, और किस तरह से ये इमेज जो है लाइक अपने आप में बहुत कुछ बोल रहा है, लाइक आई मीन। और सेम इमेज, ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट इमेज है कि जहाँ पे आप देखेंगे, फेवरेट इमेज इन द सेंस कि जो मैं डायलॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप देखेंगे कि ये सीरिया का इमेज है। और मैं एक बार ऐसे रैंडमली फेसबुक पे देखा था और मैं इसके बारे में फिर स्टडी करना स्टार्ट किया, और देखेंगे कि इसमें एक जो ओल्ड मैन है वो म्यूजिक प्ले कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो घर है पूरा डिस्ट्रॉयड है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जो सेलिब्रेशन को हम किस तरह से देखें, क्योंकि मैं कई बार जब सेलिब्रेशन के बारे में बात की, मेरे कई सारे फ्रेंड से मेरा डिबेट हुआ कि सेलिब्रेशन मीन्स दिस, और आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे रिलीजन है और कई सारे ऐसे रिचुअल प्रैक्टिस हैं अलग अलग जगह पे जहाँ पे डेथ को भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो सेलिब्रेशन है, आप इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से प्रोटेस्ट का फॉर्म है या आई डोंट नो, बट ये इमेज मेरे से बहुत कुछ कहता है, और ये मुझे बहुत कुछ प्रोवोकेशन देता है। और खास करके इसका बेस्ट एग्जांपल आप गांधी जी को देख सकते हैं, जिस टाइम में पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर जैसे चीजों को देख चुका था, आर्म्स वेपन्स जिसके जो पूरे डिक्शनरी में भर चुका है। तो उस टाइम में गांधी जी बस धोती और लाठी से पूरी दुनिया घूम रहे थे। तो ये इटसेल्फ हमें लगता है कि शायद हम
किस तरह से इसको देखें। और बस यही कुछ ऐसे सोच हैं जो मेरे काम में आते रहते हैं, और मेरे काम को में जो भी पॉइंट लाइक चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से फॉर्म होता है, इन सब थॉट से फॉर्म होता है। और ये मेरा फाइनली वर्क जो ऑलमोस्ट रिसेंट ही है। मैंने एक इमेज बीच का रखा है जो जो शायद 19 में, यस 19 के बिगिनिंग में आर्टिस्ट यूनाइट करके जो हुआ था, उसमें मैंने अपने लेग को मिट्टी खोद के ग्राउंड में उसपे पीओपी डाल के फिक मीन्स डाला था। और आप देख सकते हैं कि सारे इमेज का जो मोशन है, अगर आप कोई आर्टिस्ट यूनाइट में गए होंगे तो आप एटमॉस्फेयर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि पूरे इमेज एक मूवमेंट में है। इवन मी मेरा जो एक साइकोलॉजिकल स्केप है, माइंड स्केप है, और जो बॉडी है वो अलग-अलग टाइम में वो मूव कर रहा है। बट देयर इज समथिंग देयर व्हिच इज कांस्टेंट, आई मीन देयर, दैट इज पेन। और वो पेन हर एक पॉइंट पे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वो पीओपी था और पीओपी फिक्स होता जा रहा था। जो पीओपी के अंदर का सरफेस भी हार्ड हो रहा था, और वो एक सर्टेन टाइम के बाद जिस तरह से टाइम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, स्पेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और बॉडी भी उसी ताल के साथ, उसी रिदम के साथ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये एक आर्टिस्ट यूनाइट का एक प्रोजेक्ट था। और ये रिसेंट, बहुत ही रिसेंट मीन्स अभी, अब मैं जो भी प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ बहुत ही रिसेंट, लाइक अभी जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अभी, ये मैंने अब्र के लिए किया था ये वीडियो मेकिंग। और इसमें अगेन वही कॉन्वर्सेशन है। इस वर्क पे मैंने काफ़ी ऑलरेडी बात कर लिया है, जहाँ पे एक बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन और कहीं न कहीं एक लैंडस्केप और इन सब चीज़ों की थॉट प्रोसेस में मैंने इसको एक्सप्लोर किया था। आई थिंक बहुत कुछ मैंने इस पे बात भी किया है। और इसी सीरीज़ का ये कुछ ड्राइंग्स है जिसको मैं लॉकडाउन डायरी की तरह मैंने नाम दे करके ऑनलाइन किया है। और इसमें करीब 80 और 85 ड्राइंग की ये सीरीज़ हैं। और और अ, अ, और ये मेरा आई मीन बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, या आई डोंट नो, ये एक ऐसा प्रोसेस है और एक ऐसा वर्क है जिसमें हम सीरीज ऑफ कैनवास कंटिन्यू, इट्स ऑलमोस्ट 10 इयर्स। मैं 2011 के अराउंड मैंने कैनवास स्टार्ट किए थे, और मैं कभी न्यू कैनवास प्रोड्यूस नहीं करता हूँ। मैं बार बार इसी कैनवास को पेंट करता हूँ। कभी ये कुछ और कलर हो जाते हैं, कभी कुछ और कलर हो जाते हैं। अल्टीमेटली जो है अभी आपके सामने, वो अभी प्रेजेंट कंडीशन है। और पता नहीं आगे जब तक ये फाइनली कहीं पे डिस्प्ले नहीं होता, मैं कितने सारे और लेयर्स इस पे पेंट करूँ। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन इसमें है, जो मैं इसको एक टाइम, स्पेस और जिसको कि आप इमोशन बोलें या आई डोंट नो वर्ड, बट सबका एक कंप्रेस्ड फॉर्म है। सॉरी, ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है या मैं एकदम फ्लो में बोले जा रहा हूँ? मतलब इज इट ओके, एवरीथिंग इज ओके? Yes, okay, Milan. ओह आई एम सॉरी। ओके, तो ये वही एक वर्क है जो जो सीरीज ऑफ वर्क है उसी सीरीज का है। हालांकि इमेज में जस्टिफाई नहीं होता है, क्योंकि मैं उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाता हूँ। नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट है जो आप इमेज अभी सामने है। तो ये एक तरह से मैं इसको एक सेंटर ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, और एक कंप्रेस्ड टाइम और स्पेस जिसमें 10 इयर्स के कॉन्वर्सेशन और सबसे बड़ा विटनेस हम देखेंगे का, हमको अगर कुछ लगता है तो ये मेरा पेंटिंग लगता है, हम देखेंगे। एंड उसी सीरीज से ये मेरा कुछ इंस्टॉलेशन है जो अभी मैंने सीरीज ऑफ इंस्टॉलेशन कुछ बनाया है, और उसके एक इमेज है ये। और ये बहुत सारे फ्रेंड्स इंस्टा पे भी देखे होंगे, ये होम। और फिर फाइनली ये मचान, जो मचान का अगर आप टाइम देखेंगे तो टाइम मचान में जो मैक्स मुलर भवन में था, ये था फरवरी मार्च के अराउंड, जिस टाइम में ना कि सिर्फ एक साइकोलॉजिकली हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन देखें, बल्कि आप अगर ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली और
सोशली आप जैसे भी देखेंगे, दिल्ली में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जहाँ पे दिल्ली इलेक्शन हो रहे थे, वेदर शिफ्ट हो रहे थे, और इस तमाम ऑब्जर्वेशन का ये मचान एक सेंटर, जो मचान का एक आइडिया है, सेंटर ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे सारी कॉन्वर्सेशन एक एक जगह पे आ रहे थे। जैसे आप पेंटिंग में देखा, जो साइकोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन एक जगह पे प्लेस्ड हो रहे हैं, उसी तरह से ये जो पूरा एक 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 सोशल स्ट्रक्चरल बिहेवियर है, उसका जो जो ऑब्जर्वेशन है, वो कहीं ना कहीं इस मचान पे आ रहा था। एंड थैंक्स, थैंक यू सो मच। Thank you, Murari. Thank you for this presentation. Uh, थोड़ा सा लोगों के मन में भी काफी सारे क्वेरीज है, तो हम लोग बात करेंगे। और बहुत, सॉरी, हाँ बताओ। मेरे को जस्ट एक क्वेरी है कि क्या मेरा पूरा पीपीटी और कॉन्वर्सेशन क्लियर था ना? हाँ, पीपीटी तो हमने देखा पूरा। और ऑडियो मीन्स करेक्ट था? हाँ, ऑडियो ओके, ओके, मेरी थैंक यू। मुझे तो आ रहा था, बाकी ओके, पता नहीं। मुझे आवाज आ रही थी। और बाकी मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा और मचान के बारे में थोड़ा सा और बताते लोगों को, जो recent project। ओके। मचान जो प्रोजेक्ट था, वो फार फ्रॉम मैं हूँ मचान करके ये प्रोजेक्ट का पूरा टाइटल था। और ये मैंने गोथा इंस्टीट्यूट में जूरक्स मीडिया कलेक्टिव के क्यूरेशन में जो सॉरी हुआ था। तो इस प्रोजेक्ट में मचान का आप एक अगर कैरेक्टर देखेंगे, और जो हम फर्स्ट पेंटिंग आपको दिखा रहे थे, जहाँ पे बॉडी और एक लैंडस्केप का एक एक ऐसा पॉइंट है, जहाँ पे हमें लगता है कि वो मर्ज होता हुआ है शायद, या फिर वो एक ऐसा पॉइंट बन जाता है। और गांव में हम लोग इसको अड्डा की तरह भी यूज करते थे। और अगर आप इसका हिस्ट्री देखेंगे, जहाँ पे मचान किस तरह से एक खेतों में एक फार्मर्स यूज करते थे अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने फसलों के प्रोटेक्शन के लिए, और फिर उसके बाद इसका किस तरह से यूटिलाइजेशन होने लगा, जो एक हर एक लोग, हर एक तबका से, हर एक क्लास और मीन्स आप जहाँ पे देखेंगे कि इस तरह की कोई ये नहीं रहता। जैसे कि आप अगर गांव का स्पेस देखें, तो बहुत स्ट्रक्चरल रहता है कि ये, लेकिन मचान एक ऐसा केंद्र बनता है जहाँ पे वो चीजें खत्म हो जाती है। और खास करके ना कि सिर्फ इस तरह की सोशल स्ट्रक्चर खत्म होता है, बल्कि जो आप देखेंगे, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि एक लैंडस्केप और इसका, तो ये सारी जो 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 एक जो जो सबको एक जगह इकट्ठा करने का जो सेंस है। और आप खास करके उसमें देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन जो जो डायरेक्ट आपको टाइम से कनेक्ट करेगा, कि आप डायलॉग करते हो। जैसे कि आप कभी लोकल ट्रेन में सफर किए होंगे, तो तमाम मुद्दे बात होते हैं उस टाइम में। वो मोदी के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, और वो राहुल गांधी के बारे में भी बात कर रहे हैं। तमाम चीजें आती है उसमें, वो हर एक बात होती है। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं वो जो एक मल्टीपल ऑब्जर्वेशन है, जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स है टाइम का, और साथ ही मचान सेल्फ किस तरह से वो सारे मल्टीपल ऑब्जर्वेशन को गैदर करता है। तो ये सब कहीं ना कहीं इसमें एक एक सोच था। और मैंने इसको पूरे बैम्बो से, अभी साइज मेरे को याद नहीं आ रहा, सॉरी, काफी ह्यूज साइज है। न्यूज़ था, काफी लोग बैठ के बात कर सकते थे उसमें, हम लोग राइट, भी। या और ये बहुत ही रिसेंट था, ये जस्ट आई थिंक फरवरी और समटाइम, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं काफी लोग जो आज है वो आपके काम को देखे होंगे, काफी लोग नहीं भी देखे हैं। तो कहीं ना कहीं मुरारी काफी सारे परफॉर्मेंस भी करता है, बट के आर्टवर्क पेंटिंग्स भी अभी काफी सारे रिसेंटली किए हैं। जैसे उसने अपने लॉकडाउन डायरी के बारे में बताया, और उसके अलावा कैनवसेस भी मुरारी किया है। और फाउंड ऑब्जेक्ट काफी लेता है, मुरारी के काम में फाउंड ऑब्जेक्ट रहता है और उसको वो कन्वर्ट करता है। जैसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुरारी जैसे शुरू में उसने कुछ पेंटिंग्स दिखाए, और एज एन आर्टिस्ट जो इम्पोर्टेंट इमेजरीज थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुरारी के काम बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल और मेंटल स्पेस,
उसने आज मेंटल स्केप की बात कही, तो एक बॉडी स्केप भी है और मेंटल स्केप भी है मुरारी के काम में, दोनों चीजें साइड बाय साइड है। और बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे चला गया है काम। जैसे आपने कहा कि साइन और सिग्निफाइड सिग्निफायर, उस तरीके की चीजों को, कि एक चीज है, उसका मीनिंग कुछ, मतलब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, फिर उसको हम कैसे परसीव करते हैं, तो वो परसेप्शन लेवल पे आपका काम कहीं ना कहीं चला गया है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मुरारी, अगर आप एज अ परफॉर्मर अपने बॉडी को देखते हैं, या आप बॉडी की भी बात कर रहे हैं इन जनरल, तो आप उस बॉडी का रिलेशन कैसे देखते हो विद द स्पेस एंड टाइम, एंड एंड हैव यू थॉट अबाउट कि बॉडी कभी स्पेस बन जाता है, और जो हमारे आसपास का स्पेस है वो भी हमारे बॉडी की तरफ बन जाता है, द एक्सटेंडेड स्पेस। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थैंक यू। बिल्कुल, ये आप जब जब कई बार हम कॉन्वर्सेशन में बात करने के, जब ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अभी हम एक परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, तो आप जो फर्स्ट मैंने मीन्स आर्टिस्ट यूनाइट का इमेज दिखा रहे थे, आप देख सकते हो कि किस तरह से वो इटसेल्फ एक स्पेस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। मीन्स आप जब एक मेंटल स्केप या एक साइकोलॉजिकल कंडीशन में भी आप देखते हो कि बॉडी ना सिर्फ ट्रांसफॉर्म करता है स्पेस को, स्पेस इटसेल्फ बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म करता है। और कहीं ना कहीं, और ये एक 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 बॉडी इटसेल्फ, लाइक अगर स्पेस की बात करें तो वो इटसेल्फ बॉडी है। बॉडी का फॉर्म, लाइक कहने का मतलब कि वो खुद एक कंस्ट्रक्ट हो रहा है, खुद एक लैंडस्केप ही है, लाइक जैसे लाइक पूरा इटसेल्फ एक बॉडी का फॉर्म है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को करता है, और उसमें टाइम, स्पेस और ये सब कहीं ना कहीं एक अपनी अपनी स्ट्रक्चर है। और हमको लग रहा है कि शायद सबका एक कनेक्टिविटी है, लाइक लाइक कि चाहे वो स्पेस हो, क्योंकि आप, मैं एग्जांपल में ही मैं बोल सकता हूँ कि जैसे कि आप उसमें देख रहे हो कि आप स्पेस भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक सर्टन साइकोलॉजी वहां पे उसको उसको बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अब अगर लिटरली हम समझें कि पीओपी एक टाइम के साथ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, पीओपी फिक्स हो रहा है, वो टाइम के गति के साथ चल रहा है। हाँ, सेम टाइम में आपकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बॉडी भी पेन का रियलाइजेशन उसकी हाइट, उसकी स्ट्रीम पे पहुंच रहा है। और स्पेस भी उसी तरह से फंक्शन कर रहा है, क्योंकि वो सॉफ्टनेस को अब्सॉर्ब कर रहा है, देन वो हार्डनेस को अब्सॉर्ब कर रहा है। ये सारे कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये इंटरलिंक्ड है, और इस तरह से मेरे को समझ में आ रहा है। आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। ऑल राइट, ऑल राइट। तो मुरारी, जैसे आप पेन की बात करते हो अपने काम में, कई बार आप रेफर किए हो, तो जैसे आप थोड़ा सा पढ़े भी होंगे साइको एनालिसिस में, दो तरीके के पेन, पेन एज साइकिक ट्रॉमा भी होता है, पेन एज साइकिक एक्सप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रॉम ट्रॉमा भी है। तो आप किस तरीके के पेन के बारे में रेफर करते हो, और मतलब डू यू ऑल्सो ट्राई टू, हाउ डू यू ट्राई टू रिलेट टू दिस पेन इन पर्सनल लेवल? वेल, थैंक यू, थैंक यू। ये एक्चुअली ये अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था ट्रॉमा के ऊपर, और आपने जो लाइक ये इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए क्योंकि मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ और वो बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है मेरे को पढ़ने का। अभी तक मैं कई बार उसको पढ़ चुका हूँ, लेकिन बहुत कम परसेंट है जो मेरे को समझ में आया। तो खास करके मेरे साथ ये भी एक चैलेंजिंग रहता है कि उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना, उसको उसके अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये मैं फिर भी मैं इसको जो अगर देखूं तो मेरे को लग रहा है कि जो फिजिकल पेन है और जो साइकोलॉजिकल जो जो इमोशन से कनेक्टेड पेन है, हम बार बार अपने काम में, अपनी कॉन्वर्सेशन में एक स्ट्रीमनेस ऑफ थॉट बोलते हैं, जो पेन मींस इमोशन, और वी कैन से लाइक थॉट
स्ट्रीमनेस ऑफ इमोशन, तो कहीं ना कहीं उस जगह पे जो फिजिकल जो जो पेन का सेंस है वो लॉस्ट हो जाता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं उस बुक में ही देखने की कोशिश कर रहा था, पढ़ रहा था कि जैसे अ, आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कई सारे लोगों का पैर हाथ कटने के बाद उनका एक एक अलग एक एक स्पेस क्रिएट हो गया, मीन्स पोस्ट ट्रॉमा जो जिसको हम बोलते हैं, कि वो पेन का जो एग्जैक्ट सेंस है वो नहीं है, बल्कि वो जो एक अलग उसकी पोस्ट ट्रॉमा बोले जो अलग एक स्पेस क्रिएट कर रहा है। मीन्स उस जैसे कि आप देखोगे कि बहुत लोग की बिहेवियर, जैसे मैंने कई अभी वीडियोस में मैंने बात किया था कि जहाँ पे मंटो का जो जहाँ पे सकीना के बारे में मैंने बात किया कि वो जब जाती है और बोलती खोल दो, तो उसका जो फिजिकल पेन है वो दैट अब फिजिकल नहीं है, अब वो एक मेंटल स्केप में चला गया है और वो एक इमोशन है और अल्टीमेटली वो वहां पे पहुंच गया है। तो ये दोनों ही एक जगह पे जाके होते हैं, और जब एक्सट्रीमनेस आता है ऑब्वियसली वो इमोशन को और कहीं ना कहीं वहां उसको वो स्पेस है। आई डोंट नो मैं कितना क्लियर हुआ। हाँ, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपका ये कहना है कि आप जो फिजिकल ट्रॉमा या मेंटल ट्रॉमा ट्रॉमा के एक्सट्रीम में जाके, जैसे सम अदर हमारे बॉडी या माइंड के रिएक्शंस होते हैं अननोइंगली, यू आर टॉकिंग अबाउट द अनकॉन्शियस माइंड आल्सो समटाइम्स, राइट? बिल्कुल। तो तो उस तरीके की बातें आई थिंक मुरारी कहना चाह रहे हैं राइट, कि हाँ। हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को लेके, लाइक बिल्कुल, पास्ट और इसमें एक्सपीरियंस। थोड़ा-सा हम ऐड करना चाहेंगे, सॉरी, कि जैसे कि इसको और अगर हम थोड़ा-सा डिटेल में बात करें कि जैसे जहाँ पे आप फिजिकल और इमोशनल पेन के बारे में बात करें, अगर मेरे को चोट लगता है, हाँ, और बार-बार, बार-बार चोट लगता है, वो एक एक लिवर प्रोड्यूस कर रहा है या फिर एक ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस कर रहा है कि बार-बार, बार-बार जब पेन होता है, तो आप एक अलग ज़ोन में पहुँचते हो। तब वो फिजिकल लेबर का एहसास, आई मीन फिजिकल हिट का, पेन का एहसास नहीं रहता, वो कहीं और किसी और लेवल पे पहुंच जाता है। लाइक कि हाँ, मीन्स उसी तरह जैसे कि हम एक अभी रिसेंट एग्जांपल दे रहे थे कि अगर एक फार्मर बार बार ये कुदाल चला रहा है, तो एक फिजिकल हिट होता है, लेकिन बार 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 वो करने के बाद ना उसका एक हाथ में बॉडी कैलस। कंस्ट्रक्ट हो। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि जो इमोशन भी उसी तरह से वर्क करता है। अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है, वो फिजिकल स्पेस से भी शुरू हो सकता है, वो इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन एंड उसका जो स्ट्रीमनेस है वो इमोशन से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, और वो स्ट्रीमनेस में जाके जहाँ पे शायद लास्ट कॉन्वर्सेशन में हम बात कर रहे थे कि एब्सर्डिटी और ब्ला ब्ला थिंग, वो खैर वो अलग सिचुएशन है। और तो और जैसे बॉडी को कई बार लैंडस्केप के साथ लोग कनेक्ट करते हैं, मेटाफोरिकल यूज होता है, तो वहाँ पे कई बार इन वेस्टर्न वर्ल्ड फीमेल बॉडी को क्वेश्चन में रखा जाता है। सो डू यू सी समथिंग इन दैट एज अ जेंडर्ड बॉडी? और आप सॉरी, एक क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से कैन यू रिपीट दिस जो मेटाफोरिकल बॉडी इमेजरीज होते हैं क्वेश्चन? दैट इन रिलेशन टू द लैंडस्केप कई बार वेस्टर्न वर्ल्ड में यूज हुआ है, एंड स्पेशली वो फीमेल बॉडी को लेके जनरली रहता है। तो क्या आप वैसे डू यू सी द बॉडी इन रिलेटिंग टू द लैंडस्केप एज यू वर टॉकिंग अबाउट जेंडर्ड बॉडी, और यू जस्ट व्हाट वे यू सी द बॉडीज रिलेशन विद द लैंड? जहाँ तक हमको लग रहा है कि आप देख, मैं अगर देखने की कोशिश करता हूँ तो लग रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, और अगर आप क्योंकि क्योंकि आप रेनेसांस टाइम से पहले से वो किस तरह से लैंडस्केप के बारे में कॉन्वर्सेशन हो, और हमने बहुत सारे फिलोसफी में अलग अलग इज्म देखा है, वो चाहे एग्जिस्टलिज्म हो या फिर वो अलग अलग तरह से नेचर और लैंडस्केप की कनेक्शन के बारे में बात हुई। लेकिन मेरा पॉइंट है कि सिर्फ आप देखोगे कि जब सिर्फ
इंग्लिश लिटरेचर और आर्ट में नहीं बल्कि इंडिया में भी आया। आप अगर मैं इसकी बारे में बात करूं कि जो हमारे लाइक रिलीजियस ग्रंथ, उसको क्या बोलते हैं, लाइक जो बुक्स होते, ग्रंथ हाँ, कोई रिलीजियस और कुछ इस तरह के जो बुक्स होते हैं उसको क्या हाँ, मैथोलॉजी, कि आप देखते हैं कि उसमें किस तरह से लैंडस्केप का मेटाफर किस तरह से यूज हुआ है। और जहां तक जेंडर की बात है कि मैं थोड़ा सा बटलर की फिलोसफी को अगर समझने की कोशिश करता हूँ कि वी परफॉर्म जेंडर, हाँ, कि वहां पे वो क्लेम करते हैं कि जहाँ पे जेंडर कहीं शुरू से नहीं आता बल्कि वी परफॉर्म दैट। और खास करके आप देखेंगे कि लैंडस्केप के साथ भी है, जहाँ पे आप अगर बात करो ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मा के पुत्र से उनको जेंडर मतलब उनका जेंडरीकरण होता है, लाइक कि वो मतलब मेल जेंडर को ये है। और इस तरह से कई नदियां हैं और इस तरह से, तो लैंडस्केप का भी कहीं ना कहीं मैथोलॉजी में या फिर कहीं ना कहीं किस तरह से प्रयोग हुआ है और कहाँ किस तरह से जेंडर परफॉर्म हुआ है। लाइक हम जैसे बटलर क्लेम कर दें कि ह्यूमन ह्यूमन और मतलब हमारे लाइक ह्यूमन में जेंडर परफॉर्मेटिविटी के बारे में जो बात करती है, तो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं वो है। बट एग्जैक्टली मेरे को मैं जो सोच पा रहा हूँ। ओके। और एक ये सवाल था कि जो आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, जैसे लॉट ऑफ पीपल माइट बी नोइंग दैट मुरारी मेक्स कलेक्ट्स लॉट ऑफ फाउंड ऑब्जेक्ट एंड देन ही कन्वर्ट देम विथ यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स। फिर उसके साथ जैसे आप अपने कैनवस के साथ बोले कम्युनिकेट और कंटिन्यूअस प्रोसेस करते हैं, तो सेम वे मुरारी मेक्स कल्चरल ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, और जैसे बनता है स्कल्पचर वैसे रखते नहीं है, वो उसके साथ और बहुत ट्रीटमेंट करते हैं। And they appear some of the objects appear like very sensual. So is that something you wanted to create, or that just appear, or are there sensual connotation, कुछ meaning वैसा लेके आप बनाते हो? बिल्कुल। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि लास्ट में हम लोग इस कॉन्वर्सेशन भी कर रहे थे और मैं पढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ और हमारी अद्वित से भी जब बात हो रही थी तो हमें जो समझ में आया है कि जो स्ट्रीम ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, या जैसे कि उस दिन सिगमंड फ्राइड के बारे में अद्वित भी मेंशन कर रहे थे, और खास करके अगर मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं जब अभी कुछ बुक्स पढ़ रहे थे तो मेरे को लग रहा है कि जब आप स्ट्रीम सिचुएशन को परफॉर्म कर रहे हो तो इट्स लाइक काइंड ऑफ हीलिंग। क्योंकि मैं बार बार ये बात करने की कोशिश करता हूँ कि मैं जो काम प्रोड्यूस करता हूँ वो शायद ट्रॉमा और इसके बारे में बात नहीं, क्योंकि वो जो प्रोसेस है मैं उसको देख रहा हूँ। मेरे को प्रोडक्ट जब फाइनल है मुझे पता नहीं उसके बारे में, और वो उस पर खैर लंबा कॉन्वर्सेशन हो जाएगा। तो इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो एक सेलिब्रेशन है और वो वही एक्सेप्टेंस है, वही पे जो मैं कह रहा था। और वहां पे सेंसुअलिटी है, क्योंकि क्योंकि और वो मेरे बहुत ही अनकॉन्शियस अप्रोच से आ रहा था, बट जब मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो लग रहा है कि वहां पे एक सेंसुअलिटी है, क्योंकि आप उसके साथ जो प्ले कर रहे हो, आप उसके साथ जो एक हीलिंग का है सेंस, आपके साथ वो जो एक जो वो जो पॉइंट बन रहा है, वो हमें लग रहा है कि शायद वो द्रव्य जो प्रोसेस है वो एक आपको Sensual. सेंसुअलिटी की तरफ ले जाता है और एक प्रोसेस। तो शायद देयर इज मीन्स इसका मतलब कि वो एकदम आपको वैसे बनाना है, वैसे आप कुछ दिखाना चाहते हो, वैसा डायरेक्ट इंटेंशन नहीं होता है, बट द होल प्रोसेस कम्स आउट टू बी सेंसुअल एट टाइम्स, राइट? राइट, बिल्कुल। वो पर्पस नहीं होता है बल्कि वो प्रक्रिया में ऑब्जेक्ट किस तरह से वो लाइक करते हैं। और ये मेरे काम में इस तरह से बहुत आ रहे थे और मैं खुद जब अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर, तो हमें लग रहा है कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो इटसेल्फ वो जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसकी जो प्रोसेस है उसमें वो सेंसुअलिटी एग्जिस्ट कर रहा है। और जैसे आपने बोला कि पास्ट डिस्कशन में भी अद्वित ने मेंशन किया था, और इसके अलावा भी फ्रॉइड इवन चाइल्डहुड के प्लेजर के बारे में भी कभी कभी बात कर, मतलब अपने साइको एनालिसिस थ्योरी में बोलते हैं कि इवन बेबीज और चाइल्डहुड में भी इस प्लेजर, समथिंग सेंसुअल प्लेजर का वो रहता है समटाइम।
तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं, तो मे बी इन दैट वे इट कम्स आउट इन योर वर्क, एज यू सेड द होल प्रोसेस बिकम्स सेंसुअल। और मेरे को बहुत एक इंटरेस्टिंग एक छोटा सा पीडीएफ मिला था, वो पढ़ रहा हूँ अभी। बहुत क्लियर नहीं है तो लेकिन उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और सेक्सुअलिटी और आई मीन्स और जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि एक डॉक्टर के बारे में है, मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, जो हर टाइम वो एक डॉग का टेल कटिंग कर देता, काट देता था। तो और बार बार वो कटिंग करता था, और फ्राइड जब उसको एग्जामिन किए तो उसमें जो सेंसुअलिटी के बारे में फिर आगे डिस्कस करते हैं। इस लंबा स्टोरी है, मैं बहुत अभी उसको कंप्लीट, लेकिन ये इंसिडेंट मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और बाद में फिर डॉक्टर बनता है, लेकिन सेंसुअलिटी कहाँ पे और सेक्सुअलिटी किस तरह से वो उसके पूरे इसमें है, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो होपफुली कभी नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे तो शायद विल डिस्कस दैट। तो और मुरारी, जैसे यू यूज टू से कि जैसे रिपीटेड कमांड के बाद सकीना वाला इंसिडेंट को आप बोल रहे हो कि खोल दो, तो उसको वो रेस्पॉन्ड करती है, तो कहीं ना कहीं आप वही मीनिंग की बात कर रहे हो कि कैसे मेंटल इफेक्ट करता है, या किसी कमांड का मीनिंग कैसे रिपीटेड कमांड के बाद एक तरीके से एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम परसीव करने लगते हैं एक वर्ड को रिपीटेडली, आपको जिस तरीके से दिया जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसका। तो आप भी अपने कैनवस या अपने आर्टवर्क के साथ, आपने बोला कंप्लीट कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन में कई सालों तक करते हैं, सो हाउ डू यू सी द रिपीटेड ट्रीटमेंट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, उसके साथ कम्युनिकेशन को क्या कहना अम, मैं अगर एक शब्द में बोलूं तो मेरे को एक रेसिस्टेंस का फीलिंग आता है, एक एक लाइक जो मैं इमेज दिखा रहा था, और इसमें बहुत सारे डायलॉग हैं। एक जो मैं बता रहा था, एक विटनेस का सेंस और देखने का जो सेंस है, और कहने का मतलब सारे इमोशन, आप उसमें सिर्फ अपनी इमोशन को ट्रेस ना कर रहे हो, बल्कि आप एक टाइम को ट्रेस कर रहे हो। वो हर एक चीज का एक स्पेक्टेटर है। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें 10 इयर्स तक एक आर्टिस्ट काम करते हैं, द रोज करके है। मैं बहुत उस पेंटिंग के बारे में पता नहीं है, पर हम उसको अभी सोचने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक कंटिन्यू डायलॉग जो है ना, वो सिर्फ आपके साइकोलॉजी को नहीं, वो पूरे टाइम और हर एक चीज का विटनेस बन जाता है। तो मेरे को एक रेसिस्टेंस का उसमें फीलिंग आता है, और एक आई मीन यस। है? और आप उसके टेक्सचर के साथ उसके सरफेस और उसको भी बहुत ध्यान देते हो अपने काम में ना, लाइक द पेंटिंग और द स्कल्पचर्स। बिल्कुल, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप जब मेरे वर्क को टच करेंगी या आप देखेंगी, तो आपको एक साइकोलॉजिकल जोन में ले जाएगा कि मेरे वर्क किस तरह से, मटेरियल जो उसका है किस तरह का है, और वो किस तरह के टेक्सचर प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह का मतलब एक 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 फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं। चाहे आप स्किन ही है, लेकिन वो किस तरह का स्किन प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको शायद एक वो ग्लिम्स मिलेगा कि आप देखेंगे कि बहुत लेयर्ड, जैसे कि आप जो हमने दिखाया था, वो एमसिल का जो जो लेयर है, वो आपको बहुत ही स्किनी फील होगा, लेकिन आप जैसे उसको टच करोगे तो बहुत ही कठोर अपने आप में वो दिखेगा। तो बड़ा एक साइकोलॉजिकल जोन है उसमें। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट आई थिंक बिकॉज मुझे लगता है कि और भी जो ऑडियंस है उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है, तो हम ओपन कर सकते हैं। इफ देयर इज नॉट, वी कैन कंटिन्यू टॉकिंग, बट आई थिंक Sure. देयर आर पीपल हु वांट टू आस्क एनीथिंग। यहाँ पे वो भी ओपन करके बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, बट आई एम जस्ट रीडिंग। गिरीश बेहरा हैज रिटन, Hi Murari, I could not understand the image of Gandhiji. Rather than your images you depict, I feel romantic way of healing, like suicide. The experiment of truth, old version book is real talk about Gandhiji's vulnerable about gender and God. Girish, can you come online and you can speak in person? That will be more easy to understand for Murari, I think, rather than. Girish, are you there? Yeah, can you hear me? हाँ. Yes. Hi Murali. Hi, 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 Krish.
A beautiful presentation, Murali. Like, I really enjoy the you are talking about the pain, the different, like, really I enjoy your presentation a lot. But when Thank you you. talk, I mean, placing the figure like Gandhi is like, our nation, like we carry it as from like childhood. I have been looking Gandhi, it's for me like, it's very heavy, like, everywhere like Gandhi, I look at Gandhi. But I, during my college time, I did a public performance with over Gandhi autobiography. I mean the yeah October 2, like Gandhi Jayanti. So I got a lot of questions, like, like maybe thousands of questions I got, like positive and negative. So always from that, and I got a book called Autobiography of Gandhi. It's talking about it's like his experiment of truth and like, I read that book like around 7 8 years back. So I did not understand when you're talking about the pain and how the figure is represent like non-violence. Correct. Like a lot of lot of violence. Like, how can I say? Like, there is a partition, there is everything. Like, how this image, like, for me is very question, right? Correct. Correct. I, Thank you, Grace. आपका then for क्वेश्चन the बहुत अच्छा है. freedom, yeah, then freedom is how you look at the freedom. Like, if I talk about like pain, sometimes how you look at the freedom, then like or resistance, like yeah, थैंक yeah. थैंक Thank यू you. गिरीश. आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि मेरा जो गांधी का इमेज यूज करने का पर्पस था और जो मैं थॉट पुश करने की कोशिश कर रहा था वो आपके फर्स्ट लाइन में मेरा आंसर था जो बहुत हैवी है. और मैं जो बात कर रहा था कि बहुत हैवी जब कोई किसी को आप स्लैप करते हो और वो आज के टाइम में अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो वो आपके मेंटल स्केप को किस तरह से हैवी बना देता है. जो मैं अपनी माँ का भी एग्जांपल देके बता रहा था कि जहाँ पे अगर वो हमको पनिश नहीं करती हैं, बस सिर्फ ये बोलती हैं कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाता है. तो मैं गांधी जी को इसी हैवीनेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज करने की कोशिश कर रहा था जिस टाइम में इतने सारे वायलेंस थे, इतने सारे जो आप बोल रहे हो एग्जैक्टली वैसा ही था. और इतने सारे तो गांधी जी जिस तरह से कर रहे थे और जिस तरह से उनका अप्रोच था, तो शायद मैं जिस अंडरस्टैंडिंग से उनको देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि वो अपने आप में एक लाइक उस हैवीनेस को प्रोवोकेशन था एक्चुअली. कि जहाँ पे वो शायद मतलब मैं उस टाइम के फेज में बात कर रहा हूँ आज के क्योंकि बिल्कुल फिर इस पे एक लंबी कॉन्वर्सेशन हो सकती है कि आज के टाइम फ्रेम को उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं उनको बता रहा हूँ कि किस तरह से वो अगर सत्य अहिंसा के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो जो आपने बुक का नाम जिक्र किया कि उसमें किस तरह से वो कन्फेस कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, और वो भी हमको लग रहा है एक बहुत ही बड़ा रेसिस्टेंस है और बहुत ही बड़ा चैलेंज है सेल्फ और स्ट्रक्चर के बीच में. जो मैंने आपको जहाँ पे एक सीख इमेज प्रेजेंट किया कि आप ये कर लाइक आप अपने आप को रख रहे हो मीन्स पता नहीं मैं इसको कैसे वर्ड दूं कि जहाँ पे आप मतलब कहने का मतलब कि मैं लाइक एक तरह से एक ब्लैक पोएट मतलब ऐसे करके एक है ग्रुप जिसका मैं पढ़ रहा था. मेरे को लाइन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे क्लियर हो जाता. तो मेरे कहने का मतलब ये पॉइंट है कि आप अपने आप को रख रहे हो ना. अगर एग्जांपल दूं कि अगर इस टाइम में जहाँ पे आप न्यूज चैनल्स खोल रहे हो आप एक निगेटिविटी देख रहे हो या फिर आप एक पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो जो आपके ऊपर हावी हो रहा है, जो पूरा फोर्स कर रहा है, अगर आप उसको अपने आप को हैप्पीली जैसे कि वो जो सीरिया का मैंने इमेज दिखा था, आप उस टाइम में अगर अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हो ना, इटसेल्फ ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है, बहुत बड़ा हैवी बना देता है. तो मेरा कहीं ना कहीं तात्पर्य वो था. पता नहीं मैं कितना क्लियर हो पाया, लेकिन मेरा जो रखने का और कॉन्वर्सेशन का अप्रोच वो था. It's true, like, the Syria, the image one, like really beautiful image. I don't have questions because the figure, the image for me, I didn't get any detail of from the figure, but the visual is so beautiful when a person having, smoke, Playing with music. after the circumstance, like, the destruction, Right.
the destruction theory and construction theory, whatever. Then lot of the philosophers we are talking about, they cross the boundary. But again, whether I look at the Gandhi, who made a lot of boundary, in my nation. So yeah, who kept many people in the dark age. So I'm so sorry. Thank you so much. नहीं नहीं, There is thank you, like a thank you, very, thank you thank you, so much. thank you. चलो, And Thank you. there is one question from Preeti Roy. She's asking, would you like to explain the drawing or thought process behind these series of drawings? जो अपने black drawings दिखाए थे, I think उसके बारे में और कुछ बिल्कुल recent. वो एक्चुअली सारी कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं मेरे अपने वर्क और अपनी थॉट प्रोसेस को ही ला रहा था, बट पर्टिकुलर वो ड्राइंग जो है एक मैं जो एक बॉडी का इमेज जहाँ पे दिखा रहा था, जहाँ पे दो बॉडी है और कहीं ना कहीं उसमें एक बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन को मैं पे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कोई भी ऐसी फोर्सेस और पता नहीं क्या शब्द मैं यूज करूँ कि कोई भी ऐसे, चाहे वो लेवरल फोर्स हो, चाहे वो ट्रॉमेटिक हो या जो भी सिचुएशन हो जो आपको ट्रांसफॉर्म करता है, जो बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है, और वो किस तरह से एक लैंडस्केप बनाता है, क्योंकि आप लैंडस्केप में बहुत सारे लेयर हैं जो हम लोग बात कर सकते हैं मे भी कि किस तरह से, तो मेरा पूरा जो वो प्रोजेक्ट है, वो जो पूरा ड्राइंग है वो वहीं से आ रहा है कि आप देखोगे कि बॉडी का एक फॉर्म है एंड देन सेम टाइम आप उसको एक स्टोन, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे, जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ एब्सर्डिस्ट फिलोसफर से, एब्सर्डिस्ट लिटरेचर और आई कैन से थिएटर से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, और मेरे को कई बार मैं पढ़ने का कोशिश भी करता हूँ, जिसमें वन ऑफ द माई फेवरेट की एल्बर्ट कॉमस बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मेरा सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं की जो बॉडी का जहाँ पे मीनिंगलेसनेस है, जहाँ पे आप बस उसको एक स्टोन की तरह देख रहे हैं, तो दैट वाज द काइंड ऑफ थॉट इन माय माइंड अराउंड दैट सीरीज ऑफ ड्राइंग और वॉक। Thank you, Murali, for explaining this. थैंक यू। And we are almost towards the end. If Shatadru or anyone would like to say anything before we leave. ऐसे तो बातचीत काफी लंबी जा सकती है अगर हम लोग करना चाहे, बट हमें टाइम का भी ध्यान रखना होगा, सो बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि मुझे बस एक चीज अच्छा लग रहा है कि मैंने बहुत सारे फ्लॉप और फेल एक्सपेरिमेंटेशन प्रेजेंटेशन के साथ क्या है कि मैंने कई बार ऐसे ट्राई किए, क्योंकि प्रेजेंटेशन में हमेशा मैं जब कॉन्वर्सेशन लाने की कोशिश करता हूँ, मेरे दिमाग में रेफरेंस और एक हेजिटेशन हमेशा डिस्ट्रॉय करता है, बट आई होप कि इसमें मैं थोड़ा सा कम्युनिकेट कर पाया हूँ, आई डोंट नो हाउ मच, बट या। Thank you. If Shatadru, you want to join, can join before we leave today. Thank you, Murari. It's a lovely presentation. I would like to ask one question because as I seen your object, art object, you making the art fair and other show, the Mumbai. So I feel very much sexual and gender interplay. So could you tell us gender interplay? And art all time the body and the object you're making, the clay, very much take time. And how you connect it with the gender and sexuality? परफेक्ट, थैंक यू। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कौन सा वर्क आर्ट फेयर में जो लगा था, वो एक्चुअली जो वो वाला था जो दीवाल में लगा था हमारे मोइना मुखर्जी के स्क्वायर में। आई गॉट इट। एक्चुअली वो एक फॉन्डल प्रोजेक्ट मुंबई आर्ट रूम में हुआ था, जिसका वो था, उसमें कहीं ना कहीं हम कंसेंट को लेकर के काम कर रहे थे, लेकिन आप जो जिसके पूरे ऑब्जेक्ट जो है एक बॉडी पार्ट जैसा है, और उसकी पूरी डिस्प्ले भी जो है बॉडली प्ले था, लाइक आप बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसका प्लेसमेंट था, मींस पेंटिंग और स्कल्पचर के फॉर्मेट में नहीं था, बल्कि बॉडी के जो 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 लाइक आई मीन क्या बोलेंगे उसके लाइक प्लेसमेंट उसी तरह से था।
तो उसी का पार्ट था जिसमें पूरा मैं सोचने की कोशिश करता हूँ कि खास करके ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट बोला कि मैं बार-बार एक चीज अभी के प्रैक्टिस में बात करने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे मीडियम का ब्लरनेस और परफॉर्मेटिविटी और परफॉर्मर का भी ब्लरनेस, जहाँ पे स्पेक्टेटर ही परफॉर्मर कैसे बन जा रहा है, तो वहां पे मेरा एक अप्रोच था कि सारे मींस स्पेक्टेटर कैसे परफॉर्मर बनते हैं। तो वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट था, जैसे ही वो किसी स्पेक्टेटर के कांटेक्ट में आता था, तो उसका एक बॉडी लैंग्वेज क्रिएट होता है। हालांकि आप जो आर्ट फेयर में देखें, उसका प्लेसमेंट सही नहीं था, आपको पता होगा। वो जो सर्कल है वो एक सर्टेन स्केल पे है, जो वो पीनस जैसा फॉर्म है वो एक सर्टेन स्पेस, और जैसे ही कोई लेफ्ट राइट करते हैं तो ऐसा लगता है कि समवन इज मास्टरबेटिंग और समथिंग लाइक दैट। तो हर एक इस तरह के पोजीशन क्रिएट करते थे जो एक ह्यूमर की तरफ भी ले जाता था, लेकिन इस पे हम मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से वो एक ट्रॉमेटिक भी था मेरे लिए, क्योंकि आप जब मी टू के बारे में बात करते हैं और जब किसी के लाइक एक कंसेंट का बात होता है, तो किस तरह से आप बार बार उस सरफेस को टच कर रहे हैं और किस तरह से वो कलर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस तरह से ऑब्जेक्ट जो था किक करने के लिए था और वो किस तरह से उसका टोन चेंज हो रहा है। तो ये तमाम जो लाइक क्यूरियोसिटी थे वो इस काम में था। So your address to the participatory practice, and but my question is that the private object going to be in a participatory object is kind of what is your psychology? Private object when you play placed in a public space is a participatory object. So what is your psychological interplay of that? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मैंने सोचा नहीं उस तरह से, बट बिल्कुल ये जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे था वो बिल्कुल एक पब्लिक स्पेस में रिस्पॉन्ड हो रहा था, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में था, और हमको लग रहा है कि आज के टाइम में प्राइवेट और पब्लिक एक इटसेल्फ बहुत बड़ा आर्गुमेंट है, क्योंकि आज ये लाइन जब आप मैं पता नहीं मैं अभी कुछ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट को पढ़ रहा था, तो मेरे को लग रहा है ये लाइन ही ब्लर है, क्योंकि आप अभी अपने प्राइवेट रूम में हैं, राइट, और अभी ये इमेज वायरल हो जाएगा और ये पब्लिक प्रॉपर्टी कब बन जा रहा है। तो आज के टाइम में प्राइवेट और पब्लिक इटसेल्फ एक मर्ज लाइन हो गया है, और मेरे हिसाब से मैं जिसको सोच पा रहा हूँ, और खास करके जिसको आप पब्लिक बोल रहे हैं, वो किस तरह से पब्लिक है। अगर मैं रोड पे जाके बीच रास्ते पे भी थूक दूं तो शायद मेरे को फाइन देना पड़ेगा, तो आई कांट कंसीडर एज अ लाइक काइंड ऑफ आई मीन सॉरी मतलब पब्लिक स्पेस। अगर मैं पब्लिक स्पेस में भी कुछ ऐसा करता हूं, तो कहने का मतलब ये जो लाइन है वो पूरा ब्लर्ड है। मैं प्राइवेट स्पेस में भी कुछ प्राइवेसी कहीं ना कहीं लिमिटेड है, उसकी एक लाइंस है, और अगर आप सेम चीजें अगर पब्लिक स्पेस में भी पब्लिक नहीं है, लाइक so there is lots of blur line in between. So the things I saw that time, I'm thinking that how you're sarcastically going to address to the society, and how you make a mockery with your object. That is my personal feelings. Thank you, Pranamita. Thank because you. I know you a very long time, and I closely observe your work, because we are in many workshop and residency we are together, and I can see your growth like many layers. The artistically growth not only one language. There is be many more language, socio-political, sexuality. So is together your many more layers, and how you make a language. That is beautiful things, and best wishes for futures. Thank you so much. Thank you so much, Dan. Thank you so much. Thank you, Pranamita. Thank you, Mr. Thank you so much, all of you. Thank you.